بم کے بعد ادویات بم کی تیاری۔ ادویات کی قیمتوں میں 350% سے زائد اضافے کی سمری تیار۔ 119 ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کے لیے وفاقی کابینہ کو سمری ارسال۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری ڈریپ اور وزارت صحت نے تیار کر لی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں سجاد حسین سے۔ جی سجاد بتائیے گا۔ جی بالکل، پٹرول بم کے بعد اب ادویات کا بم گرایا جا رہا ہے اور ادویات کی قیمتوں میں 350% سے زائد اضافہ کی سمری جو ہے اس کو تیار کر لیا گیا ہے۔ 119 ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کے لیے وفاقی کابینہ کو سمری جو ہے وہ ارسال کر دی گئی ہے۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کی سمری ڈریپ اور وزارت صحت نے تیار کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جن ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے ان میں ٹائفیم آئی جی انجیکشن کی قیمت جو ہے وہ 367% اضافہ کے ساتھ جو ہے پرانی قیمت جس کی جو 687 روپے مقرر تھی، اب موجودہ قیمت جو بڑھائی جا رہی ہے وہ 1632 روپے کی جا رہی ہے۔ اسی طرح دیگر ادویات کی بات کی جائے تو کلوروکوئین فاسفیٹ 80 mg جو ٹیبلٹ ہے اس کی قیمت میں 206% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ کلوروکوئین کی جو پرانی قیمت ہے وہ 431 روپے مقرر تھی، جبکہ اب موجودہ قیمت جو سمری بھیجی جا رہی ہے وہ 1323 روپے کی جا رہی ہے۔ اسی طرح نیلٹراکس 50 mg کی قیمت جو ہے وہ 213% اضافہ کیا جا رہا ہے اس میں، اور اس کی پرانی قیمت 665 روپے مقرر تھی، جبکہ اب 2084 روپے اس کی نئی قیمت جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح آئی ڈریپ فائنولین کی جو قیمت ہے وہ 177% اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کی پرانی قیمت جو ہے وہ صرف 26 روپے تھی اور اب جو ہے وہ اس کی قیمت 73 روپے کی جا رہی ہے۔ اسی طرح گلیسرین ایریگیشن سولوشن کی قیمت جو ہے وہ 160 روپے اضافہ کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کی پرانی قیمت جو ہے وہ 364 روپے مقرر تھی، اب موجودہ جو قیمت کی جا رہی ہے وہ 755 روپے سامنے آ رہی ہے۔ اسی طرح ہیومن کرونک جو انجیکشن ہے اس کی جو ہے وہ 140% قیمت میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جبکہ ہیومن کرونک کی پرانی جو قیمت تھی وہ 1225 روپے تھی، اور جبکہ اب جو قیمت مقرر کی جا رہی ہے وہ 2941 روپے مقرر کی جا رہی ہے۔ اسی طرح اینٹی ٹی بی جو ٹیبلٹ ہے اس کی پرانی قیمت جو ہے وہ 1242 روپے مقرر تھی، اب نئی قیمت جو ہے وہ 1762 روپے جو ہے وہ اس کی سفارش کی گئی ہے۔ اسی طرح فائنو فائبریٹ کیپسول جو ہے 200 mg ان کی قیمت میں 212% اضافہ کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کی پرانی قیمت جو ہے وہ 135 روپے مقرر تھی اور موجودہ جو نئی قیمت ہے اس میں 422 روپے کی سفارش کی گئی ہے۔ اسی طرح لیتھیم جی شکریہ کاربونیٹ سجاد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے افسران کو فائلوں میں شفافیت لانے کا حکم نامہ۔ چیف ٹاؤن پلانر ایل ڈی اے اسد الزمان نے تمام تر ٹاؤن پلاننگ افسران کو لیٹر لکھ دیا۔ مراسلے میں فائل پروسیسنگ کے دوران شفافیت لانے کا حکم دیا گیا۔ زین العابدین سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی زین بتائیے گا۔ ایل ڈی اے کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے افسران کو فائلوں ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے افسران کو فائلوں میں شفافیت لانے کا حکم نامہ، جس پر چیف ٹاؤن پلانر ایل ڈی اے اسد الزمان نے تمام تر ٹاؤن پلاننگ افسران کو لیٹر لکھ دیا اور مراسلے میں فائل پروسیسنگ کے دوران شفافیت لانے کا بھی حکم دیا گیا۔ چیف ٹاؤن پلانر ایل ڈی اے اسد الزمان نے تمام ٹاؤن پلاننگ افسران کو لیٹر لکھ دیا۔ ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے افسران کو فائلوں میں شفافیت لانے کا حکم دیا گیا۔ زین سے رابطہ بحال ہوا ہے، مزید ڈیٹیلز جانیں گے۔ جی زین آگاہ کیجیے گا۔ یہ ایل ڈی اے کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے افسران کو فائلوں میں شفافیت لانے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ اسد الزمان کی جانب سے تمام ٹاؤن پلاننگ افسران کو یہ لیٹر لکھا گیا ہے۔ مراسلے میں فائل پروسیسنگ کے دوران شفافیت لانے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ڈائری ڈسپیچ اور فائل موومنٹ میں قانونی ضابطہ پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، جبکہ ریکارڈ کیپر بغیر کسی منظوری کے ایل ڈی اے کی فائلوں کو لے کر گھومتے رہتے ہیں۔ ایل ڈی اے کی اہم فائلیں غیر متعلقہ اشخاص کے ہاتھوں میں لگنے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس مراسلے میں یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ شفافیت لانے کے لیے تمام ٹاؤن پلاننگ کے افسران ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کریں۔ خلاف ضابطہ فائل ایک دفتر سے دوسرے دفتر جانے پر اس فائل کا جبکہ فائل پروسیسنگ کی ہدایات پر عمل نہ کرنے پر متعلقہ افسران کے خلاف بھی عمل میں لائی جائے گی۔ شکریہ زین آپ کا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात हुई है। राना मशहूद, अनीसा फ़ातिमा, रहीला खादिम और रमेश सिंह अरोड़ा ने अलग अलग मुलाकातें की। मुल्क और पंजाब की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी हुआ है। मुलाकात का अहवाल जानेंगे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा। जी, वज़ीर मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक़ अरकान पंजाब असम्बली राना मशहूद, अनीसा फ़ातिमा, रहीला खादिम हुसैन और रमेश अरोड़ा ने आज माल्टाउन में उनकी रिहाइशगाह पर अलग अलग मुलाकातें की हैं। वज़ीर आज़म ने साबिक़ अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम फलाह बहबूद और मुल्की तरक्की वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन की तरजीहात में शामिल है। मुलाकात में मुल्क पंजाब की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया, जबकि पंजाब के आम इंतखाबात और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन इस हवाले से भी बातचीत की गई। शुक्रिया मोहम्मद यासीन। सूबाई वज़ीर एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर का पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का दौरा। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तमाम तर शोबों की कारकर्दगी का जायजा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर फारूक की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग। सजाद हुसैन से तफसीलात जान लेते हैं। जी सजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर ने पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का दौरा किया है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तमाम शोबों में गए और इनकी कारकर्दगी का जायजा लिया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर फारूक की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में बेहतर सर्विस डिलीवरी सिस्टम से पंजाब में एड्स से मौत में कमी आई है। डॉक्टर जमाल नासिर का कहना था कि पंजाब में एड्स की रिपोर्टिंग सिस्टम को मजीद बेहतर किया जाएगा। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के 100 खाली असामियों पर जल्द भर्ती जो है वो की जाएगी। तमाम DHQ अस्पतालों में HIV सेंटर मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियत जो है फराहम करने में मसरूफ हैं। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर इलियास कोदल भी इस मौका पर मौजूद थे। जी शुक्रिया सजाद। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से चीन के कौंसल जनरल की मुलाकात। चीन ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से स्मोक पर काबू पाया है। स्मोक से निमटने के लिए चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे। पंजाब हुकूमत के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। तफसीलात जानेंगे लियाकत अली से। जी लियाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी से वज़ीर आला ऑफिस में चीन के कौंसल जनरल जाओ शेरिन ने मुलाकात की। बामी दिलचस्पी के अमूर मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने, खुसूसन स्मोक पर काबू पाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और CPI के मनसूबों पर भी बातचीत हुई। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए सैयद मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुश्किल की हर कड़ी में पूरा उतरी है और चीन ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से स्मोक पर काबू पाया है। एयर प्योरीफाइड टावर्स की चीनी टेक्नोलॉजी जो है वो स्मोक के हवाले से साबित हुई है। पंजाब और लाहौर में स्मोक पर काबू पाने के लिए चीनी टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि स्मोक से निपटने के लिए चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे। चीनी कौंसल जनरल जाओ शेरिन ने कहा कि पंजाब हुकूमत के साथ मुख्तलिफ शोबे में ताउन जारी रखेंगे और स्मोक पर काबू पाने के हवाले से पंजाब हुकूमत की भरपूर मुआवनत करेंगे। शुक्रिया लियाकत अली। और पेफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 82वां इजलास। डॉक्टर सईद शफकत पेफ बोर्ड के नए चेयरमैन मुंतखब होने पर MD पेफ और बोर्ड मेंबर्स की जानिब से मुबारकबाद। आतिफ परवेज से तफसीलात जानते हैं। आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कुछ रोज पहले जो है हुकूमत की जानिब से पेफ के जो चेयरमैन है उनको डीनोटिफाई कर दिया गया था और आज जो है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के 82वां इजलास हुआ है जिसमें नए चेयरमैन का इंतखाब कर लिया गया और डॉक्टर सईद शफकत जो हैं उनका जो है वो चेयरमैन के तौर पर इंतखाब किया गया है। तमाम बोर्ड मेंबरान और MD पेफ ने डॉक्टर सईद शफकत को चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद दी। तमाम सीनियर बोर्ड मेंबरान के तजर्बे से पेफ को मजीद आगे बढ़ाएंगे, ये कहना था चेयरमैन का। पेफ पार्टनर और पेफ टीम तालीमी मैदान में बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। पेफ स्कूलों में पढ़ाने वाले साथी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि बोर्ड पेफ पार्टनर्स की सहूलत के लिए और इसके साथ साथ जो पार्टनर स्कूलों में मेयार तालीम को बेहतर करने के लिए मजीद इक़दाम करेंगे। शुक्रिया आतिफ आपका। कहीं तामीराती काम तो कहीं सियासी सरगर्मियां। शहर के बेशतर इलाकों में ट्रैफिक का बुरा हाल। ट्रैफिक सुस्त रवि के बायस शहरी परेशानी का शिकार। ट्रैफिक की सूरत हाल बारे मजीद भी आपको बताएंगे, जो कि अभी ट्रैफिक का बुरा हाल है और ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है, जिस पर ट्रैफिक के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा।
जी बिल्कुल, हम इस वक्त मॉल रोड पर ज़मान पार्क वाले एरिया में मौजूद हैं और यहाँ पर भी ट्रैफिक है। बड़ी अहम शरह है जब से यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरहम, इसकी वजह से जो मुतादिद शहराएँ हैं जो इससे लिंक्ड हैं वहाँ पर भी ट्रैफिक का दबाव रहता है। जब से इमरान खान के यहाँ पर होने की वजह से कैंप लगाए गए हैं PTI की कारकुनान की जानिब से, तब से जो है यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम बिल्कुल बुरी तरीके से ख़राब है। इसके साथ साथ बताता चलो कि शहर में मुतादिद जगहों पर जो है ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब चल रहा है, जैसे कि चबुर्जी वाली साइड पे है और समनाबाद वाली साइड पे जो रोड कंस्ट्रक्शन हैं और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, उनकी वजह से जो है वहाँ पर भी ट्रैफिक का दबाव है। सारा दिन तो इतने ट्रैफिक का दबाव नहीं रहता, लेकिन जो ऑफिस और दफातर के औकात होते हैं, छुट्टी और सुबह के औकात, वहाँ पर ट्रैफिक प्रॉपर तरीके से जो है जैम रहती है। इस वक्त मॉल रोड पर भी जो है इसके लगभग जो नज़दीक इलाके हैं, कनाल रोड ले लें या बाकी जो अहम शहराएँ हैं जिसके साथ अटैच होती हैं। और सगिया रोड पैकेज 3 मंसूबे को नए बहरान का सामना, हुकूमत की जानिब से मजीद फंड्स जारी ना हो सके, कॉन्ट्रैक्टर्स ने तामीराती काम की रफ्तार सुस्त कर दी, जबकि सगिया रोड पैकेज 3 को PC1 के मुताबिक 6 माह में मुकम्मल करने का ख्वाब धुंधलाने लगा। ज़ैनुल आबिदीन रिपोर्ट कर रहे हैं। फंड्स की अदम मौजूदगी सगिया रोड पैकेज 3 मनसूबा तकमील का मुंतज़िर। माजी में पैकेज 3 के लिए जारी होने वाले फंड्स मुकम्मल इस्तेमाल हो गए। LDA ने मजीद फंड्स के इजरा के लिए पंजाब हुकूमत से उम्मीदें लगा ली। PC1 के मुताबिक मनसूबा 6 माह में मुकम्मल करने का ख्वाब धुंधलाने लगा। सगिया रोड पैकेज 3 में बेगम कोट से फूल मंडी चौक तक सड़क तामीर की जा रही है। मनसूबे के तहत 1.6 किलोमीटर तवील सड़क की तोसी की जानी है। बेगम कोट से फूल मंडी चौक तक दोनों तरफ 2-2 लेन सड़क बनाई जानी है। सगिया पैकेज 3 की मजमूई लागत का तखमीना 1 अरब 68 करोड़ रुपए लगाया है। जड़ामाला रोड पर कॉन्ट्रैक्टर ने अधूरी ड्रेन बिछाने के बाद काम बंद कर दिया। LDA और कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से साइट पर हिफाजती इंतजाम भी नहीं किए गए। सड़क पर असफाल्ट कारपेटिंग के लिए मंगवाई गई मशीनरी भी बंद पड़ी है। पैकेज 3 के लिए फंड्स खत्म होने पर कॉन्ट्रैक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। कॉन्ट्रैक्टर के नए बिल्स LDA के खजाने से क्लियर नहीं हो रहे। फंड्स न मिलने से तामीराती काम इल्तवा का शिकार है। लाहौर में आलूदगी के साथ मुख्तलिफ अक़साम के वायरसेस का हमला शहरियों पर सितम ढाने लगा। शहर में नज़ला और नमूनिया के केसेस में 100% तक इजाफा हो गया है। माहिरीन का एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर। सुहेल केसर की रिपोर्ट देखिए। उमूमी तौर पर नज़ला, ज़ुकाम, नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन जैसे अमराज में मौसम सरमा के आगाज पर ज्यादा इजाफा देखने में आता है, लेकिन इस मरतबा लाहौर में सूरत हाल काफी मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। सर्दी की शिद्दत में कमी के बावजूद भी हॉस्पिटल्स में सांस, नज़ला, चेस्ट इन्फेक्शन और नमूनिया के मरीज बड़ी तादाद में आ रहे हैं। इसकी बड़ी वजह आलूदगी के साथ साथ मुख्तलिफ इक़साम के वायरसेस का हमला करार दी जा रही है। डेली जो हमारे पास 100-150 पेशेंट चेस्ट इन्फेक्शन के आते थे, जो कि अभी लास्ट वीक और 10 डेज से वो अराउंड डबल हो गया नंबर उसका ना, अराउंड 300-250 हो गया ऐसे। उसकी रीज़न जो है उसमें एक तो वायरल फ्लू है, डिफरेंट टाइप्स के ना, अराउंड 5 वायरल फ्लू जो है अब तक डिटेक्ट हो चुके हैं। पोल्यूट्रिसिटी ये इसकी बहुत बड़ी रीज़न है। करार दिया जा रहा है कि ये सूरत हाल बच्चों और बड़ी उम्र के अफराद के लिए तिब्बी हवालों से बहुत ज़्यादा मसाइल का बाइस बन सकती है। इसके साथ ज़ियाबितस, गुर्दों और बुलंद फिशार खून जैसे अमराज में मुब्तला अफराद को खुसूसी तौर पर एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे अफराद में नमूनिया ज़्यादा पेचीदा सूरत इख्तियार कर सकता है। बहुत ज़्यादा मरीज एमरजेंसियों में आ रहे हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, नमूनिया के साथ। एक कमरे में अगर एक आदमी बैठा हुआ है, दूसरा खांसी कर रहा है, तो वो मुँह पर रुमाल ज़रूर रखे, मास्क का इस्तेमाल करें। बाहर जब ड्राइविंग कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पर हैं, तो हेलमेट और मास्क का इस्तेमाल करें। डायरेक्टली जो है वो स्मॉग से, आलूदगी से, इन कांटेक्ट आने से अपने आप को बचाएं, ताकि आप एक इन्फ्लुएंजा से भी बच सकें और दीगर सांस की बीमारियों से भी बच सकें। बिलाशुबा चंद एक एहतियाती तदाबीर हमें किसी बड़ी मुश्किल से बचा सकती हैं। इस सूरत हाल को भी बहुत ज़्यादा अलार्मिंग तो करार नहीं दिया जा रहा, लेकिन पेशेंट्स की तादाद में जिस रफ्तार से इजाफा हुआ है उसे ज़रूर तशवीशनाक समझा जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी बावर कराया जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार न किए जाने की सूरत में सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो सकती है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश मसूद की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग इजलास में अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस, पेंडिंग चालान और रोड पेंडेंसी का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में अदालती, आदी और इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी का भी जायजा लिया। शाहजेब शहजाद से तफसीलात जान लेते हैं। जी शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश मसूद की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग हुई है, जिसमें इजलास में अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस, पेंडिंग चलान, रोड पेंडेंसी का तफसीली जायजा लिया गया है और SSP इन्वेस्टिगेशन अदालती और आदि इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी का भी जायजा लिया है। जबकि इस मौके पर SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि पेंडिंग इंक्वायरी और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का जल्द अज जल्द मेरिट पर यकीनी बनाए, जबकि असला, मंशियात और केसेस में माल मुकदमा बरवक्त जमा करवाया जाए ताकि मुल्जिमान को सजा मिल सके। जबकि पुलिस से
पुलिस हिरासत से मुलजमान के भागने और हलाकत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। खवातीन और बच्चों के अगवा और ज्यादती के केसेस पर बिला इख्तियार कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। शुक्रिया आपका शाह से। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस का अहतमाम। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी फ़हद हुसैन ने कॉन्फ्रेंस में ख़ुसूसी शिरकत की। पंजाब यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस का अहतमाम एसोसिएशन ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन एकेडमिक प्रोफेशनल्स ने किया। कॉन्फ्रेंस का मौजू मुश्तरका भलाई के डिजिटल दौर में सहाफ़त और मुआशरे के दरमियान ताल्लुकात पर नजरसानी था। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी फ़हद हुसैन और वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर ने ख़ुसूसी शिरकत की। इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा हमीदुल रहमान, डीन ऑफ स्कूल एंड कम्युनिकेशन स्टडी डॉक्टर न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना।